मैं रिज्यूम कर दी. So welcome all, or let's start reading of GST, plain reading on schedule 2, where we left yesterday. So who would like to start? I will. Okay. This present an anomaly which is explained in the illustration below. Let's start with simple operating lease arrangement where goods say electricity generator whose normal sale price is 1 lakh are laying in store at Puri, Orissa to customer site situated in Bhilai, Chhattisgarh. ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ की किसी गुड्स की बात कर रहे हैं, जैसे जनरेटर जिसका नॉर्मल सेल प्राइस 1 लाख रुपए और पूरी किस्त उसमें पड़ा है स्टॉक में, और उड़ीसा टू कस्टमर साइट भिलाई पे उसे भेजना है. Supplier is registered in Orissa and recipient customer is registered in Chhattisgarh. Supplier makes an interstate supply and issue invoice of rupees 12,000. This is the lease rental invoice of first month of a 10-month lease, including interest built into this lease rental amount. अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई का बिल रेज कर देता है सप्लायर 12,000 रुपए के लिए, और ये पहले महीने की लीज रेंटल है, जो टोटल लीज है 10 महीने की, और इसमें इंटरेस्ट भी है 12,000 के अंदर अंदर. Goods travel from Puri to Bhilai and is clearly an interstate movement of goods, and IGST has been charged on the invoice. ठीक है, उड़ीसा से भिलाई गया, छत्तीसगढ़ गया उड़ीसा से, तो IGST ठीक है इंटरस्टेट मूवमेंट होने की वजह से. हाँ देख लिया, अभी आप जाओ. At the end of the first month, एक मिनट सर. हाँ. At the end of the first month, recipient customer does not return the generator by transport from Bhilai back to Puri. It is retained in Bhilai to be used in the second month. ठीक है. At the end of the first month, वो जनरेटर कोई वापस तो आया नहीं है भिलाई, वो पुरी में ही रहा. नहीं, भिलाई में रहा, पुरी नहीं आया वापस. हाँ, भिलाई में ही रहा, पुरी नहीं आया वापस. ठीक है. So the question to consider is whether 10 months lease agreement is one agreement with 10 installment to pay, or is it 10 monthly agreement contained in one document. कह रहे ये 10 महीने का जो लीज एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें 10 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या 10 एग्रीमेंट है जो कि एक ही डॉक्यूमेंट में कंटेन है. कोई आंसर that comes to mind is that it is a one agreement with 10 installment to pay. But it is well understood that time of supply does not get deferred simply because payment is collected in installment. And if it is one agreement to supply, then it is one supply and therefore has one time of supply, and which is the first day of the first month. And by this reasoning, entire GST at the rate say 18% on rupees 1,20,000, 12,000 into 10 installment will be payable in first month within due date permitted. अब वो कह रहे हैं कि अगर ये एक ही एग्रीमेंट है जिसमें 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है अमाउंट, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो पेमेंट के हिसाब से डेफर तो हो नहीं जाएगा. टाइम ऑफ सप्लाई तो वही रहेगा जिस दिन वो सप्लाई हुआ. अब अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई है तो पूरा का पूरा इनवॉइस मतलब जीएसटी जो है वो उसी दिन पे होना चाहिए. यानी 1,20,000 का 18% जीएसटी जो है वो पेबल होगा फर्स्ट मंथ की ड्यू डेट्स पर. On a more careful consideration of that question, it becomes clear that this lease exception to be examined is a month-to-month agreement, and as all monthly agreements are identical, it is executed in a single document. Now there are 10 supplies and will have 10 times of supply, and hence GST is payable on 12,000 at 18% each month. अब वो कह रहे हैं कि ये क्लियर है कि ये जो लीज है वो मंथ
टू मंथ एग्रीमेंट है, ठीक है। इस एक मिनट सॉरी, ऑन केयरफुल, वो ये कह रहे हैं कि केयरफुल एग्जामिनेशन से ये भी पता चलता है कि ये जो लीज है ये मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है, और क्योंकि ऑल मंथली एग्रीमेंट जो है आइडेंटिकल है तो इसको इसी सिंगल डॉक्यूमेंट में एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो इसका मतलब अब ये 10 सप्लाईज हो गई, तो 10 टाइम्स ऑफ सप्लाई होगा, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई भी 10 ही हो गए, तो जीएसटी भी पेबल होगा 12,000 पे, 18% पर मंथ पे, ईच मंथ पे होगा। Now it is clear that the lease is a month-to-month agreement. The next question is considered is whether the lease rental invoice for the second month will be interstate as the first month or will it become an intrastate supply. वो कहते हैं चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये मंथ टू मंथ अरेंजमेंट है, तो इसलिए मंथ टू मंथ इसका वो होगा। अब वो कहते हैं नेक्स्ट लीज इनवॉइस जो है इशू करना है वो इंटरस्टेट करना है या इंट्रास्टेट करना है, क्योंकि गुड्स अब भिलाई में ही पड़ी हुई हैं, बट इनवॉइस रेज करने वाला तो अभी भी उड़ीसा में है, और वो इनवॉइस किस पे रेज करेगा, छत्तीसगढ़ पे रेज करेगा, तो मेरे हिसाब से ये इंटरस्टेट होगा। रिकलेक्टेड that generator is lying with the recipient customer at Bhilai at the end of the first month and will be continued to be used in the second month without actually being returned to Puri and then received back to Bhilai. ये तो हमने कर ही लिया है। Now location of the supplier of services is defined in IGST Act and also in CGST Act, but location of the supplier of good is not defined. कहते हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज तो डिफाइन की गई है, जब हम पढ़ रहे थे अभी पीछे भी कि लोकेशन क्या होगी सप्लायर की, ये चेक करना है, बट वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स जो है वो डिफाइन नहीं की गई है। एंड टू एग्जामिन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स रेफरेंस मस्ट बी हैड टू प्लेस ऑफ बिजनेस, तो as defined in section 2 subsection 85 of CGST Act, which provides that it will be place where business is ordinarily carried on. In this case it would be Puri, or place where goods are stored. In this case it would be Bhilai, or place from where the supplies are made or supplies are received, या वो place जहाँ पे से सप्लाई की जाती है और सप्लाई रिसीव होती है, या place where books are maintained, or place of an agent appointed to carry on business. Applying the above all 5 tests, it appears would be the appropriate test. Second would be the appropriate test, and hence location of goods in the second month would be the place of business. Okay, वो कहते हैं लोकेशन ऑफ गुड जो है सेकेंड पे जो है वही प्लेस ऑफ बिजनेस होंगी। तो बिजनेस ऑफ लीज इज नॉट कंक्लूडेड एवरी मंथ, इट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मंथ। अगर इसमें तो लोकेशन ऑफ गुड्स को वही माना, वो प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे तो वो तो लोकेशन ऑफ गुड्स तो भिलाई में ही है अभी। वो कहते हैं बिजनेस ऑफ लीज इज नॉट कंक्लूडेड एवरी मंथ। अब जो लीज का बिजनेस था वो ऐसा नहीं है कि हर महीने में खत्म हो जाता है और एक फिर नया शुरू होता है। इट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मंथ। वो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मंथ पे ही वो बिजनेस कंक्लूड हो गया था, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई थी। हेंस द फर्स्ट लिंब in the definition is non-operative in the present case, and second limb in the definition comes into operation to decide the location of supplier of the goods. And as a result, location of the supplier of the goods will be the location of the goods for the supply by way of lease in the second month, and goods being located in Bhilai will be intrastate supply by the supplier who is located in the Puri. It is for this reason the schedule 2 contains para 1b and even 5f in case of license that the supply of goods by way of lease will be treated as supply of services.
तो वो कहता है इस हिसाब से तो गुड्स फर्स्ट महीने में तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए था और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए था। वो कहते हैं इस सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, शेड्यूल 2 में पैरा 1B और 5F डाल दिया है इन केस ऑफ लाइसेंस कि दैट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ लीज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बात ही खत्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स। लीज एग्रीमेंट में आप जनरेटर भी भेज रहे हो तो दैट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो होता है उसको ही माना जाता है। तो when a transaction is treated as supply of services, then the location of goods become irrelevant। और जब इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो लोकेशन ऑफ गुड्स जो है वो बिकम इररिलेवेंट हो जाएगा। एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 of IGST Act and 2 subsection 71 of CGST Act will determine all month to be interstate supplies। तो उस हिसाब से ये सारी की सारी हर महीने में इंटरस्टेट सप्लाईज बन जाएंगी। And supplier situated in Puri, Odisha will not be required to take registration in every state where customer sites are located in lease or license supplies। तो इस तरीके से जो पुरी में है उसको ऐसा नहीं है कि अदरवाइज तो क्या होता कि इंटर स्टेट सप्लाई का इंटर स्टेट उसे मतलब भिलाई में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, तभी वो इंटर स्टेट करता। तो इसलिए अब सप्लायर ऑफ पुरी यानी उड़ीसा में जो सप्लायर है उसको जरूरी नहीं है कि जहां जहां वो गुड्स भेज रहा है वहां वहां जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए हर स्टेट में और फिर वहां जाके बाद में इंटरस्टेट बिल इशू करे। Now the above concept does not apply to hire purchase। वो कहते हैं ये अब लीज या लाइसेंस में तो है, लेकिन ये ऊपर वाली कंसेप्ट जो है वो हायर परचेज में अप्लाई नहीं होती। Because para 1C states the hire purchase will be treated as supply of goods। क्योंकि पैरा 1C कहता है कि हायर परचेज will be treated as supply of goods। The question that arises here is whether the supplier under hire purchase agreement will be liable to take registration in all states where customer sites are located। तो अब एक नया क्वेश्चन आता है कि क्या सप्लायर को इस तरीके से हर स्टेट में जहाँ के उसके कस्टमर हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कह रहे हैं जहाँ गुड्स लाई करती हैं वहां पे वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, तो वहां जाके जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा तभी इंटर स्टेट का बिल इशू कर सकता है। नहीं तो पुरी का बंदा ये उड़ीसा से आप छत्तीसगढ़ के लिए इंट्रा स्टेट तो बिल इशू ही नहीं कर सकते उड़ी के जीएसटी नंबर पे उड़ी के। नाउ द एक्सपर्ट ओपिन that in hire purchase it is not a month to month hire purchase but a single agreement for the entire duration। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि हायर परचेज में ये मंथ टू मंथ हायर परचेज नहीं है, लेकिन एक सिंगल एग्रीमेंट है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन एंड ईच पीरियोडिक पेमेंट इज ओनली एन इंस्टॉलमेंट। और जो पीरियोडिक पेमेंट है वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट है। Therefore there is only one supply with one time of supply and tax is payable at the rate applicable to those goods and on entire hire purchase price। कहते हैं इसलिए ये एक सप्लाई है, एक ही टाइम की सप्लाई है और टैक्स जो है वो एंटायर हायर परचेज प्राइस पर उसी वक्त पे देना होगा। There is a pressing need for a circular on this aspect of difference between hire purchase and lease। वो कहते हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी जरूरत है ये समझने में कि हायर परचेज और लीज में इतना बड़ा डिफरेंस है। FAQs on BFSI released by government only refers to the aspect that exemption from tax
on interest is not available to finance lease, which can be extended to HP only. FAQs जो दिए हैं वो कहते हैं कि refer to aspects of exemption from tax on interest is not available to finance lease, even though each periodic payment clearly contains an element of interest. तो कह रहे हैं अब हायर परचेज में आप जब हायर परचेज पे दे रहे हैं तो जो आप इंटरेस्ट ले इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, पीरियोडिक पेमेंट जो ले रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट जो है वो इंटरेस्ट का भी है, लेकिन इसमें क्या है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट नॉट अवेलेबल, इसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट पे टैक्स अच्छा गवर्नमेंट का जो एस्पेक्ट है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम इंटरेस्ट टैक्स है ऑन इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं देना है, वो फाइनेंस लीज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब आप पीरियोडिक पेमेंट लेंगे तो उसमें एक एलिमेंट इंटरेस्ट का भी है, बट आपको जो टैक्स पे करना है वो टोटल हायर परचेज प्राइस पे करना है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स हो गया और वो जो आपका एग्जेम्पशन थी वो खत्म हो गई। ठीक है ना सतीश सर, यही होगा ना? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक, आप कंटिन्यू करो। चलो मैं फिर से एक बार इसको वैसे आप स्क्रॉल अप कीजिए, मैं वैसे समझाती हूँ इसको। ऊपर लूं? हाँ पहले यहाँ तक पूरा पढ़ लो, ये वाला एग्जांपल पूरा। ओके। रीजन फॉर divergent treatment of hire purchase compared to lease provided by the expert is stated to be in definition of hire purchase agreement from AS 19, which carries the essence of from the definition in section 2C of the now repealed hire purchase act. It states that hire purchase is a single agreement for the entire duration where possession is already passed. Option to purchase, actually option to reject, is granted on the payment of last installment, and each periodic amount paid is merely an installment within hire purchase price. Therefore, in case of HP hire purchase, since GST has already been paid at the start of HP agreement, there is no requirement for HP supplier to be registered in every state where the HP stock is supplied and put to use. Care must be taken to study what is sought to be achieved by each entry in Schedule 2, and as an exercise, one may think about para 5B versus para 6A and examine why only the goods are referred in para 7 and not the services. तो ये ऊपर से पहले इसको क्लैरिफाई करें। अच्छी सी लंबी सी इलस्ट्रेशन दी है, बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए। अब इसमें क्या है कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो लीज एग्रीमेंट है या लाइसेंस एग्रीमेंट है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और हायर परचेज जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये इन्होंने ऊपर हमें दिया था। अब इन्होंने ये बताया कि ये इन्होंने क्यों दिया था कि हायर परचेज को तो सर्विस गुड्स माना गया, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया, जबकि लीज को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। तो उसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि ये प्रॉब्लम कहाँ आने वाली थी और किसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। वो कहते हैं कि सपोज करो एक लीज एग्रीमेंट है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर आपको लीज पे देना है, 1 लाख रुपए सेल प्राइस है उसका, और आपने उसको 12,000 की 10 इंस्टॉलमेंट पे भेज दिया छत्तीसगढ़ भिलाई में, और उड़ीसा में आपका जनरेटर था और वहां से भिलाई चला गया। अब
हुआ क्या कि सप्लाई जो है फर्स्ट में अगर हम देखें कि उसने पहले महीने 12,000 का इनवॉइस इशू करेगा वो, क्योंकि उसको 12,000 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 12,000 रुपए पे उसने IGST लगा दिया, क्योंकि वहां से जनरेटर जो है छत्तीसगढ़ गया है। अब वो ये कहते हैं कि हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये एक एग्रीमेंट है जो कि 10 महीने के लिए किया गया है। इससे पहले ना ये वाला पैरा पढ़ो जो कल पढ़ा था हमने, ऊपर है ना, यहाँ से समझ आएगा, वो क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ से पढ़ना शुरू करो दोबारा से। कहाँ से? Activities or transaction to be treated as supply of goods or supply of services। कह रहा है कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट की जाती हैं। It is important to understand as to what constitutes a transaction of supply of goods or a transaction of supply of services। ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई क्या कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी ट्रांजेक्शन जो है सप्लाई ऑफ सर्विस है। That is section 7(1)(a) creates a fiction under the statute and sacrifices what is and what is specifies what is and what is not to be treated as transaction of supply of goods or a supply of service। सेक्शन 7 जो है 7(1)(a) बताता है, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रहा है कि व्हाट इज, क्या ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या नहीं है, स्पेसिफिकली ये बताता है। सो अंडरस्टूड वन कैन लिस्ट आउट 18 क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस and listed schedule 2 of which 5 classes of transaction are listed out as supply of goods while 13 others are tantamount to supply of service। तो इसमें शेड्यूल 2 में 18 क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन दी गई हैं और जिसमें से स्पेसिफिकली 5 क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और बाकी 13 को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। ऑन ए केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ रिलेवेंट clauses, it can be noticed that all the 6 classes of transaction listed out in Article 366(29)(a) of the Constitution of India are covered within the scope and ambit of Schedule 2। और वो कहते हैं कि जो 6 क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन थी आर्टिकल 366 क्लॉज 29(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उन सबको भी शेड्यूल 2 में कवर किया गया है इन 18 क्लासेस। While 2 transactions out of 6 are treated as supply of goods and other 4 are deemed to be supply of service। तो उन 6 में से 2 जो थी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी गई और 4 जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी गई और ये सब उस ऑलरेडी 18 में इंक्लूडेड है। Importantly, para 6(a) relating to works contract as defined in section 2 subsection 119 is treated as composite supply of service। वो कहते हैं पैरा 6 से जो है वो रिलेट करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को और उसको एक कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। However, section 2 subsection 119 has 14 distinct words, all of which are required to be read in conjunction with the word immovable property। Contracts relating to construction of immovable property are specifically covered in para 5B of schedule 2। वो कह रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 में 14 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं जो कि सारे जरूरी है इन कंजक्शन विद द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़े होने चाहिए। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर स्पेसिफिकली कवर्ड इन पैरा 5B ऑफ द शेड्यूल 2 और वो जो है वो पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 में कवर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयरफॉर ऑल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी
would amount to composite supply in terms of section 2 subsection 30 read with section 8. इसलिए सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अदर देन रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कंपोजिट सप्लाई है in terms of section 2 subsection 30 read with section 8. बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 7(1)(a) जो हमारा है, जो स्टैट्यूट में जीएसटी एक्ट में दिया, वो क्लियरली बता रहा है कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सिमिलरली क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे और क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं ट्रीट करेंगे। 18 क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो लिस्ट की हैं शेड्यूल 2 में, उनमें से 5 सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हैं और 13 सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, और ऐसी 6 भी हैं इनमें, इन 18 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन 366 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 से कवर्ड की गई है शेड्यूल 2 में, जिसमें से 2 गुड्स की हैं और 4 सप्लाई ऑफ सर्विसेज की माने गए हैं। अब उस पैरा 6A जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो रिलेटेड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 में इसे डिफाइन किया गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहता है कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 में 14 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, लेकिन सारे के सारे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसी कंजक्शन में पढ़े जाने चाहिए। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, वो स्पेसिफिकली कवर किए गए हैं सेक्शन पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 में। इसलिए सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि स्पेसिफिक 5B में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ गए, तो जो अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारे के सारे कंपोजिट सप्लाई कहलाएंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंतर्गत, रेड विद सेक्शन 8। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या शेड्यूल 2 में क्या चीज स्पेसिफाई की गई है, लिस्ट की गई है, जो कि ना तो सिर्फ क्लैरिटी दे रही है, पर क्लैरिटी के साथ साथ वो एक कंफर्म कर रही है कि ये इसको ट्रीटमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स का देना है या इनको ट्रीटमेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का देना है। और जितनी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में आई हैं, लिस्ट की गई हैं, वो स्कोप ऑफ सप्लाई का जो डेफिनेशन है उसको एनलार्ज नहीं करती जो सेक्शन 7(1) में दिया, पर प्लेस बाय शिफ्टिंग द प्लेसमेंट ऑफ शेड्यूल 2 फ्रॉम क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 टू ए सेपरेट सेक्शन 7(1)(a), वो शिफ्ट किया गया। जो शेड्यूल 2 में जो प्लेसमेंट थी उनको क्लॉज डी से हटाकर, 7(1) के क्लॉज डी से हटाकर एक नया सेक्शन क्रिएट किया गया 7(1)(a। उस क्यों किया? जिससे कि एक तो सबसे पहले उसे ज्यादा क्लैरिटी प्रदान की गई कि एक ट्रांजैक्शन सबसे पहले उसे सप्लाई डिटरमाइन होने की जरूरत है। कोई भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो उसे ये देखना है कि क्या वो सप्लाई है, और अगर सप्लाई है तब लिमिटेड पर्पसेस के लिए इस फिक्शन के ट्रीटमेंट जो एंट्रीज शेड्यूल 2 में एंट्रीज दी हैं उसको रेफर करना है कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस हैं। तो सबसे पहले तो सप्लाई देखना है कि सप्लाई में आता है कि नहीं आता। अगर सप्लाई में आता है तो लिमिटेड पर्पस के लिए हमें ये देखना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन जो कि सप्लाई है शेड्यूल 2 में रेफर्ड है और सप्लाई ऑफ गुड्स माननी है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माननी है, लिमिटेड पर्पस के लिए। और ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव आई थी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से 1 जुलाई 17 को। अब वो कह रहे हैं इट इज नॉट दैट शेड्यूल 2 इज एग्जॉस्टिव। ये ऐसा नहीं है कि शेड्यूल 2 एग्जॉस्टिव है, पर जो भी लिस्टेड है देन दोस ट्रांजैक्शन विल रिसीव द ट्रीटमेंट एज स्पेसिफाइड। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है शेड्यूल 2 में, बट जो भी कुछ उसने लिस्ट कर दिया उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही देना है, जैसा कि शेड्यूल 2 में प्रिस्क्राइब्ड है, स्पेसिफाइड है। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स if specified in schedule 2 to be treated as supply of services, then all provisions of GST law that is applicable to supply of services must be extended without an exception to this transaction even though it involves goods। तो कह रहे हैं जो शेड्यूल 2 में अगर भले ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन शेड्यूल 2 में उसका ट्रीटमेंट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए बोला गया,
तब बिना किसी एक्सेप्शन के जीएसटी लॉ का पूरा एक्ट, पूरे प्रोविजन, सारे प्रोविजंस उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करते हुए ही अप्लाई करने हैं, ना चाहे भले ही उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व हो। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को भी ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए पैरा 5A ऑफ शेड्यूल 2 रीड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो पैरा 5A है शेड्यूल 2 का, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग से रिलेटेड है। इन दिस सिचुएशन हाउ डज वन अंडरस्टैंड द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन वेयर कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड। तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन नहीं है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसको अंडरस्टैंड कैसे की जाए? The only way to understand this lacuna is that such transaction that lack consideration would be relegated to valuation principles, but importantly the transaction would be treated as a supply। तो कह रहा है अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, और कंसिडरेशन ना होने पर हम क्या देख रहे थे, शेड्यूल 1 देखना है, और शेड्यूल 1 से भी बाहर है वो सपोज, तब सबसे पहले उसने देखना है कि भाई वो सप्लाई है कि नहीं। अगर सप्लाई है तो उसको सप्लाई तो ट्रीट करना ही है। अब बात आती है कि किस वैल्यू पे टैक्स लगाना है, तो वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन रूल्स जो प्रिस्क्राइब किए हैं वहां पे जाना है। एक और इंस्टांस अगर हम कंसीडर करें जो कि पैरा 1C में दिया है शेड्यूल 2 में, जो कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन को डील करता है। अब वो कह रहे हैं हायर परचेज एक्ट तो रिपील कर दिया गया था 2005 में, स्टिल जो आम ट्रेड है, आम बिजनेस हाउसेज हैं, वो हायर परचेज और लीज को समझते हैं। हालांकि लीज को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अब जीएसटी लॉ में क्या कहता है, ऑल काइंड्स ऑफ लीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, चाहे वो फाइनेंस लीज हो चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो। लीज विदाउट पोजेशन इज लीगली है लाइसेंस। लाइसेंस की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, कहते हैं लाइसेंस में पोजेशन नहीं देना, सिर्फ राइट टू एंटर एंड यू पुट टू यूज है, और जबकि लीज में पोजेशन भी दिया है। तो लीज और लाइसेंस में एक ही डिफरेंस है कि लीज विद पोजेशन है और लाइसेंस विदाउट पोजेशन है। अब इसलिए लाइसेंस भी और लीज भी दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करनी है, लेकिन हायर परचेज नहीं। तो लीज और लाइसेंस दोनों को तो हमने सर्विसेज ट्रीट करना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 पैरा 1C, लेकिन हायर परचेज, अच्छा पैरा 1C तो हायर परचेज की बात है और लीज अलग से है। तो हायर परचेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं ट्रीट करना, जबकि पैरा 1B और 5F में जो शेड्यूल 2 है वो दिया है लीज और लाइसेंस के लिए। पैरा 1B एंड पैरा 5F कवर करते हैं लीज एंड लाइसेंस, जब लेकिन पैरा 1C ट्रीट करता है हायर परचेज को एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हायर परचेज की जो ट्रीटमेंट है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, लीज और लाइसेंस की एज पर पैरा 1B और 5F ऑफ शेड्यूल 2 वो सर्विसेज है। Invoice for goods delivered under a hire purchase will follow time and place of supply provisions applicable to goods and not to services। जो invoice for goods deliver कर रहे हैं under a hire purchase agreement will follow time, तो time of supply को follow करेगा hire purchase में, जबकि place of supply provisions और साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस अप्लाई होंगे गुड्स के केस में। हायर परचेज में जो प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब क्योंकि हायर परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, तो अब इनवाइस का भी इशू होना है हायर परचेज में, तो टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस को फॉलो करेंगे एज पर गुड्स, ना कि एज पर सर्विसेज। मतलब टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन जो कि गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो हम हायर परचेज की ट्रांजेक्शन में फॉलो करेंगे, ना कि टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस which are related to services वो नहीं फॉलो करेंगे हायर परचेज में। लेकिन लीज और लाइसेंस में सप्लाई प्रोविजंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा एज पर सर्विसेज, नॉट एज पर गुड्स। ठीक है, यहां तक कब क्लियर हुआ? वो नीचे एनोमली देखो आगे बोलो प्लीज। अब ये एग्जांपल दिए हैं दोनों के। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल ही तो समझ नहीं आया था, बड़ा उसने घुमा फिरा के पूरा बताया था तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए मैंने कहा पहले से एक बारी ऊपर वाला जो था उसको समझ ले।
अब वो एग्जांपल जो दे रहा है वो कह रहा है ये दिस प्रेजेंट्स एन एनोमली व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन द इलस्ट्रेशन बिलो। एक ये इलस्ट्रेशन दी है कि कोई 1 लाख रुपए का नॉर्मल सेल प्राइस है जनरेटर का, जो कि पुरी में है उसके पास, किसी सप्लायर के पास उड़ीसा में, और उसने भिलाई छत्तीसगढ़ में उसको देना है। तो सप्लायर तो रजिस्टर्ड है उड़ीसा में और जो कस्टमर जो रिसिपिएंट है वो छत्तीसगढ़ में है। अब सप्लायर ने एक इंटरस्टेट सप्लाई का बिल रेज किया 12,000 रुपए का। जो 12,000 रुपए क्या है वो लीज रेंटल है पहले महीने का और टोटल लीज एग्रीमेंट है 10 महीने का, और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। हर रेंटल में लीज में इंटरेस्ट भी होता है, तो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पोर्शन भी है, क्योंकि ये फाइनेंस लीज हो गई। फाइनेंस लीज तो अच्छा वो फाइनेंस दिया जाता है। मतलब इसने कुछ फाइनेंस लीज से रिलेटेड बात की है, फाइनेंस लीज हो गई कि नहीं होगी पता नहीं। अब इसे तो इसमें जनरेटर दिया है, हाँ जनरेटर इंटरेस्ट लीज पे दिया है और 10 महीने का एग्रीमेंट है। हाँ ठीक है, वो यहां से क्लियर हो रहा है। फाइनेंस लीज इसलिए हुई कि उसने 1 लाख रुपए का उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है जनरेटर का, और उसने दिया 10 महीने के लिए लीज पे 12,000 रुपए पर मंथ, तो यानी कि टोटल उसका सप्लाई कॉस्ट हो जाएगी 1,20,000। तो 20,000 उसमें 20,000 लीज इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए गुड्स की वैल्यू और 20,000 रुपए लीज इंटरेस्ट है। अब वो कहता है जी आज जब उसने पहला मूवमेंट किया यहाँ से उड़ीसा से भिलाई भेजने के लिए, तो उसने पहले महीने का जो लीज इंटरेस्ट लीज अमाउंट है 12,000 रुपए, उसका इंटरस्टेट का बिल इशू कर दिया। क्यों किया उसने? क्योंकि जो गुड्स हैं वो ट्रेवल किए पूरी टू भिलाई, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ उसने ट्रेवल किया, और ये देखते हुए कि गुड्स की मूवमेंट है, इंटरस्टेट मूवमेंट है, इसलिए आईजीएसटी लगेगा, ये देखते हुए उसने ये कर दिया। अब इसमें यहां ध्यान देने की बात जरूर है कि जब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर even though lease is divided, अच्छा in GST law all kinds of lease are treated the same supply of services, और यहां पर वो कह रहे हैं इनवाइस फॉर गुड्स, एक और था यहां पर in this situation how does one understand the taxability of the transaction where consideration is not involved? ये भी नहीं सर यही है बेसिकली, इस एग्जांपल से ये आपको बता रहे हैं कि लीज को सर्विस मानना क्यों जरूरी है, कौन कौन सी कंफ्यूजन्स थी जो सर्विस मानने से दूर कर दिए यहाँ पर। हाँ इस एग्जांपल में ये यहाँ पर है वो, ये देखो बता यहाँ से कह रहे हैं कि शेड्यूल 2 एग्जॉस्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आइटम कोई ट्रांजैक्शन इस शेड्यूल 2 में लिस्ट हो गई तब वो ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट रिसीव करेगी, उस ट्रांजैक्शन को वही ट्रीटमेंट देना है जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में। अगर ट्रांजैक्शन गुड्स भी इन्वॉल्व, उसमें गुड्स भी ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो शेड्यूल 2 में एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, तब ऑल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, कहीं भी कोई सा भी पूरे लॉ में जो भी प्रोविजंस है सारे के सारे जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेट करते होंगे, वो विदाउट एक्सेप्शन उस ट्रांजैक्शन को हमें अप्लाई करने हैं, भले ही वो गुड्स इन्वॉल्व हो उसमें। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या सप्लाई हुआ अंडर लीज एक जनरेटर जिसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू थी 1 लाख रुपए, लेकिन 12,000 मंथ की लीज पे 10 महीने की लीज के लिए दिया। अब क्योंकि लीज सर्विस है तो सारे प्रोविजंस जीएसटी के ये मानते हुए अप्लाई करने हैं। सर आवाज गूंज रही है आपकी। इसमें बेसिकली ये स्टार्ट कर रहा है एक नॉर्मल सिचुएशन से स्टार्ट कर रहा है, और फिर इसको गुड्स और सर्विस में कि अगर हम इसको गुड्स का सप्लाई मानते हैं तो क्या क्या आएगा और सर्विस मानते हैं तो क्या आएगा, उस तरीके से इस क्वेश्चन को इसने सॉल्व करने की कोशिश की है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू ट्रीट द लीज एज सर्विस नॉट गुड्स। तो बेसिकली लीगल जो हमारा वो प्रोविजन वही है
कि क्योंकि शेड्यूल 2 में लीज को सर्विस माना है, चाहे उसमें गुड्स की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसको जो ट्रीटमेंट मिलेगा सारे लॉ, जीएसटी लॉ के सारे प्रोविजन जो कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेट करते हैं वही अप्लाई होने हैं। अब पहली ट्रांजैक्शन हुई मूवमेंट ऑफ गुड्स की, और मूवमेंट ऑफ गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव हो रहे हैं, तो और क्योंकि 10 महीने की लीज है 12,000 रुपए हर महीने की, तो जो सप्लायर है उसने क्या किया कि उसने एक सप्लाई बिल आईजीएसटी वाला काट दिया 12,000 रुपए का, और अकॉर्डिंगली जीएसटी पे कर दिया। रीजन उसका यही था कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अब वो कह रहा है जी जो पहला महीना था उसमें तो इंटरस्टेट मूवमेंट हुई थी गुड्स की, लेकिन जो दूसरा महीना है तो गुड्स की मूवमेंट तो हुई नहीं, वो वही था, भिलाई में ही था, छत्तीसगढ़ में ही था। तो क्या करे, तो इसका मतलब अब बिना मूवमेंट ऑफ गुड्स के करना है। अब क्वेश्चन ये भी है, क्या ये जो 10 महीने का लीज एग्रीमेंट है एक एग्रीमेंट मानना है, या 10 महीने के डिफरेंट 10-10 महीने के अलग अलग महीने का सेम एग्रीमेंट है? और आंसर, क्विक आंसर जो नजर आता है, जो जनरली एकदम से क्विकली आंसर आता है वो माइंड में, वो कहता है ये एक एग्रीमेंट है 10 महीने का, और 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में पे होना है। पर it is well understood the time of supply does not get deferred simply because payment is collected in installment. टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो तो वही तभी हो गया जब उसने 10 महीने के लिए लीज एग्रीमेंट पर गुड्स की मूवमेंट कर दी पहले महीने में ही, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट आनी है उसकी वजह से टाइम ऑफ सप्लाई तो चेंज नहीं हुआ। और अगर ये एक ही एग्रीमेंट था सप्लाई का, देन देयर इज वन सप्लाई, तो वो एक ही सप्लाई हुई, एंड इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई भी एक हुआ। और वो क्या हुआ, जो पहला दिन था पहले महीने का जब गुड्स की मूवमेंट हुई, और इसलिए जो जीएसटी है वो पूरे 12,000 गुना 10 की जो इंस्टॉलमेंट है 1,20,000 पे 18% के हिसाब से पे होगा। और जो भी ड्यू डेट है पहले महीने की ड्यू डेट है उसके हिसाब से भी पे होगा पहले ही दिन। मतलब बिल 1,20,000 का बनाना था, उसे 12,000 का नहीं बनाना था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरस्टेट बनाना था या इंट्रास्टेट बनाना था। मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसलिए इंटरस्टेट नहीं डिसाइड होना, डिसाइड क्या होना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है वो देखना है। One on a more careful consideration of that question, it becomes clear that this lease, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं इस लीज में, वो बाद में एग्जामिन करेंगे। पर लीज जो है वो मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है, और जो सारे मंथ हैं मंथली एग्रीमेंट्स है वो सेम है, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। तो वो कह रहे हैं क्या ये जो 10 सप्लाई मानेंगे, 10 डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और जीएसटी 12,000 पे लगेगा हर महीने 18% के हिसाब से, तो वो ये नहीं है। ये ऐसा ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं करना कि ये अलग अलग एग्रीमेंट है और 12,000 का अलग अलग बिल कटेगा। सर ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ कह रहे हैं ना, नहीं सर वो ये कोशिश कर रहा है समझाने की, अगर इसको गुड्स मानेंगे, अगर हम इसको सर्विस नहीं मानेंगे, और इसको मतलब वो ये दोनों एस्पेक्ट ले रहा है। ठीक है, अगर गुड्स मानेंगे तो कहता है पहले महीने ही 1,20,000 का बिल बनेगा, और अगर हम सर्विस मानेंगे तो 12,000 रुपए का हर महीने का बिल बनेगा। हाँ ठीक है, और मानेंगे सर्विस तो इसलिए हर महीने का 12,000 का बनेगा। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप इसको अदरवाइज आप पहले महीने 12,000 का बिल रेज भी कर देते हो, तो अगले महीने तो गुड्स वहीं पड़ी हुई है। अगर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे तो गुड्स वहीं पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब उसका फिर तो इंट्रास्टेट बिल इशू होना चाहिए, क्योंकि गुड्स की लोकेशन जो है वो वहीं पे है। बट इंट्रास्टेट बिल इशू करने के लिए फिर सप्लायर को क्या है कि जहां जहां उसने लीज पे गुड्स किए हैं हर जगह जाके उसको वो लेना पड़ेगा, तभी वो इंट्रास्टेट बिल रेज कर पाएगा, क्योंकि पूरी के उस पे तो कर नहीं पाएगा इंट्रास्टेट। तो इसीलिए उन्होंने दिखाया कि इसको लीज को सर्विस मानना ही बेटर है, क्योंकि सर्विस मानेंगे, वो कह रहे शेड्यूल 2 में से सर्विस मानना ही है तो मानना ही है। तो वो कह रहे गलती अगर हम कर देते हैं क्विक आंसर लेते हुए कि गुड्स की मूवमेंट है तो पहले महीने में 1,20,000 का बिल काट दो, और इंटरस्टेट क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो वो गलत हो जाएगा। केयरफुल कंसिडरेशन क्या करना है कि ये जो लीज एग्रीमेंट है मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है, 10 महीने के 10 एग्रीमेंट है, एक ही एग्रीमेंट में सारा उसमें लिख दिया कि 10 महीने का, इसलिए हर महीने 12,000 रुपए पर
जीएसटी पे होगा। अब वो कह रहा है क्लियर जब ये हो गया कि ये मंथ टू मंथ अरेंजमेंट है, तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि लीज रेंटल को इनवाइस, जो लीज रेंटल इनवाइस है सेकंड महीने का, क्या इंटरस्टेट होगा जैसे कि पहले मंथ में था, या इंट्रास्टेट होगा? अब वो कहता है क्योंकि जनरेटर वापस तो आया नहीं पहले महीने के बाद, तो जो लोकेशन ऑफ गुड्स जो है तो वो तो मिला ही है छत्तीसगढ़ है, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर हमें करना क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज देखनी है, लोकेशन ऑफ गुड्स तो देखनी नहीं, सर्विस से रिलेटेड सारे हमने अप्लाई करने हैं। तब वो यहाँ बता रहा है नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज इज डिफाइंड इन आईजीएसटी एक्ट, और सीजीएसटी एक्ट में भी है, लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स डिफाइंड नहीं किया है। अब टू एग्जामिन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स रेफरेंस मस्ट बी हैड इनटू प्लेस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 285 में जो प्लेस ऑफ बिजनेस बताया उसी में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, which provides that it will be एक place where business is ordinary carried on, तो जहां नॉर्मल बिजनेस ऑर्डिनरीली कैरी ऑन होता है इस केस में पूरी है। दूसरा जहां वेयर प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, और इन दिस केस वो भिलाई हो जाएगा। तीसरा प्लेस फ्रॉम वेयर सप्लाईज आर मेड और सप्लाईज आर रिसीव्ड, तो जहां से सप्लाई भेजी गई या जहां पर सप्लाई रिसीव हुई। चौथा प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो पांचवा प्लेस ऑफ एन एजेंट अपॉइंटेड टू कैरी ऑन बिजनेस। तो ये 5 जो ऑप्शंस हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस को ट्रीट करने के लिए, जो 5 टेस्ट हैं उनमें से एक सेकंड वाला ही हमें मोर अप्रोप्रिएट लगता है टेस्ट, क्योंकि लोकेशन ऑफ गुड्स जो है सेकंड महीने में भिलाई में है, तो वही लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगी। अब वो कहता है लेकिन बिजनेस ऑफ लीज जो है वो हर महीने तो कंक्लूड हो नहीं रहा, वो कंक्लूड तो पहले ही महीने में हो गया था, तो पहला लिम जो है इस डेफिनेशन का नॉन ऑपरेटिव है इन द प्रेजेंट केस, बट सेकंड लिम जो है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का कम्स इनटू ऑपरेशन टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। As a result, location of supplier of goods will be the location of goods for the supply by way of lease in the second month. तो जो location of supplier of goods है वो location of goods होगी। बोर हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और गुड्स भिलाई में है will be an intrastate supply by the supplier who is located in पूरी। अब कहता है क्योंकि गुड्स लोकेशन ऑफ गुड्स जो है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स मानी जाएगी, और लोकेशन ऑफ गुड्स भिलाई में है तो इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी सप्लायर के द्वारा, जो कि पुरी में है। अब वो पुरी में रहते हुए इट इज फॉर दिस रीजन दैट शेड्यूल 2 कंटेन्स पैरा 1b एंड इवन 5f इन केस ऑफ लाइसेंस दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ लीज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये कारण यही है कि भाई क्योंकि सेकेंड मंथ में इंट्रास्टेट सप्लाई माननी पड़ेगी और लोकेशन ऑफ सप्लायर बाहर है उस स्टेट से, तो वो कैसे बिल रेज करेगा बिना रजिस्ट्रेशन लिए, इसी वजह से शेड्यूल 2 में इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। रीजन ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने का, क्योंकि बिलिंग कैसे करेगा इंट्रास्टेट वाली, अगर बिलिंग इंट्रास्टेट वाली करनी है तो उसे भिलाई में छत्तीसगढ़ में आकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर छत्तीसगढ़ में आकर रजिस्ट्रेशन लेता है तभी वो इंट्रास्टेट कर सकता है। इस वजह से उसको आसान बनाने के लिए शेड्यूल 2 में इस तरह की ट्रांजैक्शंस को सप्लाई और सर्विसेज माना गया है, जिसकी वजह से सप्लायर को हर स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आसान करने के लिए किया है। When transaction is treated as supply or services, then location of goods becomes irrelevant. जब सर्विसेज है तो लोकेशन ऑफ गुड्स irrelevant हो गई, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज को हम ध्यान रखेंगे, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज का है पुरी में, उड़ीसा में, सेक्शन 215 के हिसाब से, या आईजीएसटी या सेक्शन 271 ऑफ सीजीएसटी। तो वो विल डिटरमाइन ऑल मंथ्स टू बी इंटरस्टेट सप्लाईज, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज की वजह से वो इंटरस्टेट है, इस वजह से वो हर महीने के लिए इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, पहले महीने के लिए भी और टोटल 10 महीनों के लिए। Supplier situated in Puri will not be required to take registration in every state where customer sites are located in lease or license supplies. तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी हर स्टेट में।
नाउ द अबव कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई टू हायर परचेज। अब वो कह रहा है ये जो हमने लीज और लाइसेंस की जो कंडीशन देखी, ये जो कंसेप्ट देखा, वो कंसेप्ट हायर परचेज में अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि जो पैरा 1C है शेड्यूल 2 का, वो कहता है स्टेट्स दैट हायर परचेज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सप्लाई ऑफ गुड्स की जब बात कर रहे हैं हायर परचेज में, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजन अप्लाई करने, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के। द न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है कि whether the supplier under hire purchase arrangements will be liable to take registration in all states where customer sites are located। अब हायर परचेज भी हम डिफरेंट स्टेट्स में कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि हायर परचेज वाला जो अरेंजमेंट में जो भी सप्लायर है, क्या उसको हर स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन लेना है जहां जहां कस्टमर की साइट है। एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट in hire purchase it is not a month to month hire purchase but a single agreement for the entire duration, and each periodic payment is only an installment. Therefore there is only one supply with one time of supply and taxes payable at the rate applicable to those goods and on entire hire purchase price। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है कि हायर परचेज जो एग्रीमेंट है वो मंथ टू मंथ एग्रीमेंट नहीं है हायर परचेज का, लेकिन एक ही सिंगल एग्रीमेंट है पूरी ड्यूरेशन के लिए। और जो पीरियोडिक पेमेंट जो आ रही है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है हायर परचेज में, वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट है, उसकी डेफर्ड पेमेंट है। सप्लाई इसलिए वो एक ही है एट द बिगनिंग, एंड टैक्स भी जो है पेबल होगा एज एप्लीकेबल टू दोज गुड्स जो भी सप्लाई कर रहे हैं एट द रेट एप्लीकेबल, और पूरे हायर परचेज प्राइस पे, विच विल ऑल्सो इंक्लूड एन इंटरेस्ट एलिमेंट। So there is a pressing need for a circular on this aspect of difference between HP and lease। तो कहता है जी इस डिफरेंस को, जो कि हायर परचेज और लीज में जो डिफरेंस है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सर्कुलर इशू करे गवर्नमेंट। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू जो इशू किए थे BFSI पर, जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस एस्पेक्ट को डील करते हैं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के केस में जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस पर टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं है। अब जब ये जो क्लैरिफिकेशन है अभी तक तो आई नहीं, तो जो इन्होंने फाइनेंस लीज की क्लैरिफिकेशन दी है कि जो उसका इंटरेस्ट पोर्शन है उस पर टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं होगी, तो उसी को एज इट इज अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें हायर परचेज में, जो कि अप्लाई किया जा सकता है, even though each periodic payment clearly contains an element of interest। क्योंकि इस केस में भी जो हर इंस्टॉलमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इसमें भी है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा टैक्सेशन से इस इंटरेस्ट पोर्शन को। रीजन फॉर द डाइवर्जेंट ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज कंपेयर्ड टू लीज provided by expert is stated to be in the definition of hire purchase agreement from accounting standard 19, which carries the essence from definition in section 2C ऑफ हायर परचेज एक्ट। जो हायर परचेज एक्ट जो कि अब खत्म हो चुका है, रिपील हो गया है, उसकी सेक्शन 2C में जो डेफिनेशन दी थी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में भी जो डेफिनेशन दी है हायर परचेज एग्रीमेंट की, वो इससे डाइवर्जेंट ट्रीटमेंट क्यों है लीज और हायर परचेज में, वो डिफाइन करता है। इट स्टेट्स दैट हायर परचेज इज अ सिंगल एग्रीमेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। तो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो सिंगल एग्रीमेंट है पूरी एंटायर ड्यूरेशन का, जिसमें पोजेशन ऑलरेडी पास कर दिया गया है हायर परचेज में, ऑप्शन टू परचेज और एक्चुअली ऑप्शन टू रिजेक्ट इज ग्रांटेड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पर उसके पास ऑप्शन है टू परचेज या रिजेक्ट। और तीसरा, each periodic amount paid is merely an installment within HPI। जो हर पीरियोडिक जो इंस्टॉलमेंट जो आ रही है, जो अमाउंट आ रही है, वो इंस्टॉलमेंट है पूरे टोटल हायर परचेज प्राइस का। Therefore, in case of hire purchase, since GST has already been paid at the start of HP agreement, there is no requirement for hire purchase supplier to be registered in every state and where the HP stock is supplied and put to use। तो इस कारण से जो हायर परचेज में, क्योंकि GST स्टार्टिंग में ही हायर परचेज एग्रीमेंट पर उतनी वैल्यू जितने की हायर परचेज एग्रीमेंट की वैल्यू है, उसी एग्रीमेंट पर GST पे हो गया, तो इसलिए हर स्टेट में जाकर हायर परचेज स्टॉक को सप्लाई करते हुए
हायर परचेज सप्लायर जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली में हो गया। जबकि लीज में क्या उसने मंथली बिल रेज किए थे, हायर परचेज में उसने सिंगल बिल रेज कर दिया फर्स्ट मोमेंट पे। केयर मस्ट बी टेकन टू स्टडी व्हाट इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय ईच एंट्री इन शेड्यूल 2। बहुत ध्यान से इसको देखना है। शेड्यूल 2 में हर एंट्री का क्या वो समझाना चाहती है। एज एन एक्सरसाइज वन में थिंक अबाउट पैरा 5B वर्सेस पैरा 6A, यानी कि 5B और 6A को कंपेयर करते हुए ध्यान से पढ़ना है और एग्जामिन करना है why only goods are referred in para 7 and not services also। 7 पैरा में सिर्फ गुड्स ही क्यों रेफर किए हैं, सर्विस क्यों नहीं की। The activities pertaining to this class are listed in schedule 2 of that and discussed in the following paragraphs। हाँ, अब समझ आया ये एग्जांपल पूरा? मेरे को आ गया। हाँ जी आ गया, लीज सर्विस है, अब क्लियर हो गया। सेल है, हायर परचेज जहाँ सेल होगा वही टैक्स दिया जाएगा, चाहे बाद में आउट ले जाओगे। तो एक तो आ गया लीज के केस में, हर महीने लीज की जो अमाउंट है, हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है एक तरह से, उसको हर महीने बिल होगा, हर महीने इनवॉइस और वो सर्विसेज मानते हुए लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज को देखते हुए ये डिसाइड होगा कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में सर्विसेज गई तो वो इंटरस्टेट हो गई। और हायर परचेज में लोकेशन वो गुड्स के हिसाब से है, तो लोकेशन ऑफ वो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के हिसाब से वो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट डिसाइड होगा। ठीक है। और हायर परचेज में एक ही बिल एट द इनिशिएशन ऑफ द एग्रीमेंट, पहले ही दिन वो बिल रेज हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल से समझ आया है, पर हाँ क्लैरिटी अब मेरे को तो आ गई। और किसी और को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ। ठीक है सर, मतलब इसमें यही है ना कि हायर परचेज में तो मतलब जब हमारा एग्रीमेंट होएगा तभी हमें टैक्स लगाना पड़ेगा पूरी अमाउंट पे, और लीज एग्रीमेंट में है कि मंथली बेसिस पे लगाना पड़ेगा। तो सेकंड मंथ में वो सर्विस की इंट्रास्टेट बन जाएगी और फर्स्ट मंथ में हम गुड्स की सप्लाई कर और ना सेकंड मंथ में भी वो इंटरस्टेट पूरा बोलने दो से पूरा क्लैरिफिकेशन तभी आएगी। हाँ मतलब सेकंड मंथ में वो इंटरस्टेट ही रहेगी मैम, क्योंकि इसको हमने सप्लाई ऑफ सर्विस माना है, और सप्लाई ऑफ सर्विस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो सप्लायर ऑफ सर्विस का प्लेस होता है। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ पे बैठा है? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर का प्लेस नहीं होता। सर्विसेज में क्या, अगर हमने जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है इन केस ऑफ सर्विसेज, तो हमने ये देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विसेज कहाँ है और रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर और सर्विसेज कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। तो हम जैसे बैठ के अगर गुड़गांव में ऑडिट कर रहे हैं तो हमारी सर्विसेज कहाँ जा रही है, हम तो लोकेटेड इन दिल्ली हैं। हम सप्लाई और सर्विसेज का हमारा वो इंटरस्टेट है इंट्रास्टेट है, वो डिपेंड करेगा हमारी सप्लाई हम कहाँ पे दे रहे हैं, इंटरस्टेट दे रहे हैं या इंट्रास्टेट दे रहे हैं, तो इसलिए इंटरस्टेट। वो पहले महीने में भी, चाहे पहले महीने में हमारा जनरेटर ट्रेवल कर रहा था, मूवमेंट ऑफ गुड्स आ रही थी, अगर वही सेम गुड्स इंट्रास्टेट भी होती, पुरी से पुरी में ही रहती, उड़ीसा में ही रहती, तब वो गुड्स के हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट बनती, लेकिन उसे मानना ही नहीं है गुड्स, क्योंकि लीज को सर्विस मानना है शेड्यूल 2 के हिसाब से। तो लीज जो सर्विसेज है हमारी प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज की लोकेशन और कहाँ सर्विसेज दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो इंटरेस्ट रेट होगी, इसके इंटरेस्ट रेट होगी। इस केस में क्योंकि वो बाहर गई है सर्विसेज, ठीक है, पहला महीना हो चाहे 10वां महीना हो चाहे 5वां महीना हो, वो सर्विसेज मानते हुए इंटरस्टेट सर्विसेज है, इसलिए इंटरस्टेट नहीं है क्योंकि वो गुड्स उसने इंटरस्टेट मूवमेंट हुई। ठीक है सर। जीएसटी लॉ का हर प्रोविजन अप्लाई करेगा सर्विसेज से रिलेटेड, सर्विस मानते हुए, ना कि गुड्स मानते हुए। तो इसमें सर ये चीज इररेलेवेंट है कि भाई हमने फर्स्ट मंथ में की तो सेकंड मंथ में तो हमारी मतलब गुड्स वहीं पे थी, तो उसको उस बेसिस पे हम इंट्रास्टेट नहीं मानेंगे। जो वो सिर्फ ये थोड़ा सा समझाने की वजह से और थोड़ा कंफ्यूज करके समझाने की वजह से उसने एग्जांपल लिया, अदरवाइज वो कह यही रहा है क्योंकि लीज जो है सर्विस है, उसको पूरी ड्यूरेशन ऑफ द लीज में
भले ही, क्योंकि लीज में गुड्स की मूवमेंट तो आएगी आएगी, उस गुड्स की मूवमेंट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि वो सर्विसेज में ट्रीट होना है, सर्विस को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन ऑफ लॉ सर्विसेज से रिलेटेड, टाइम एंड प्लेस ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड वाले लॉ डिसाइड करेंगे कि ये इंटरस्टेट सर्विस है या इंट्रास्टेट सर्विसेज है। जबकि हायर परचेज में गुड्स मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स वाले रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वाले, वो वाले लगेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। और इन्हीं दोनों वजह से इनमें हायर परचेज वालों को और लीज वालों को, सप्लायर्स को हर स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है? एक में तो देखो मीना इस तरीके से खत्म किया इन्होंने कि आप लीज में हर महीने बिल तो इशू करोगे, बट आईजीएसटी ही लगाओगे, क्योंकि आईजीएसटी लगेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है मैम। दूसरे में और वैसे भी अगर इंट्रास्टेट करोगे, तो इंट्रास्टेट पूरी में बैठ के भिलाई में इंट्रास्टेट कैसे करोगे? दिल्ली में बैठ के गुड़गांव का अगर बिल काटना है तो इंट्रास्टेट काट ही नहीं सकते। मतलब बेसिकली आपको हर एक स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े, तो उसके लिए एक में तो इन्होंने सर्विस से कर दिया, और हायर परचेज में इन्होंने क्या किया कि सारा का सारा बिल जो है वो कहते हैं आपको फर्स्ट टाइम ही इशू करना है। तो हायर परचेज में भी अगर आपने हायर परचेज में माल बाहर भेजा है, इंटरस्टेट भेजा है, तो आपने पहला बिल ही इंटरस्टेट इशू कर दिया, पूरे अमाउंट का इशू कर दिया है। तो अब आपको ऐसा नहीं है ना कि जहां जहां आप हायर परचेज पे माल भेज रहे हो हर स्टेट में जाके आप वहां रजिस्ट्रेशन लो और फिर इंट्रास्टेट बिल इशू करो। हाँ जी। बेसिकली लीज और हायर परचेज में कॉमन डिफरेंस, जनरल टेक्निकल बड़ा थिन लाइन सा डिफरेंस है ना, कि लीज है और हायर परचेज है क्या? कोई चीज बेची, जैसे इस केस में जनरेटर बेचा, 1 लाख रुपए का अगर डाउन पेमेंट लेके दे देता तो आईजीएसटी लगा के बिल 1 लाख रुपए पे कर देता, कोई इशू ही नहीं था। अब उसे लीज में दिया तो 1,20,000 का दिया और 10 महीने तक 12,000 रुपए महीने आएंगे और उसको सर्विस मानना है। लेकिन अगर हायर परचेज हुआ तब भी वो 1,20,000 का दे रहा है, हर महीने 10,000 रुपए पेमेंट आएगी। तो हायर परचेज और लीज में अंतर क्या हुआ? तो वो बड़ा टेक्निकल सा अंतर है, इसलिए वो कह रहे हैं अगर वो लीज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो सर्विस मानना है, अगर हायर परचेज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। और अकॉर्डिंगली अगर लीज में आ गया तो हर महीने लीज रेंटल का बिल हर महीने देगा, क्योंकि वो लीज रेंटल है। और हायर परचेज में हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट है, इसलिए बिल इकट्ठा ही पहले महीने और उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, पेमेंट आ रही है, और टैक्स लायबिलिटी भी फर्स्ट मंथ में। ठीक हो गया सर। एक बार और कंक्लूड कर दो 2 लाइनों में। कौन सा पॉइंट सर? यही पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली लीज और हायर परचेज में अगर कॉमन आदमी के हिसाब से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आज हमारा क्लाइंट देखो वो स्कूटी खरीदता है या एसी खरीदता है या कोई फ्रिज खरीदता है, उसको तो ये मतलब है कि मैंने घर पे एक स्कूटी खरीदी तो 50,000 रुपए की स्कूटी थी, लेकिन मैंने 50,000 रुपए मेरे पर डाउन पेमेंट देने के लिए थी नहीं, तो मैं तो 5,000 रुपए देकर और अपना स्कूटी ले आया और मेरे को 12 महीने तक टोटल, आज 5,000 प्लस 11 महीने और तक 5,000 रुपए देने हैं, स्कूटी मेरी हो गई, तो मेरी को टोटल कॉस्ट 60,000 रुपए हो गई। एक आम आदमी तो वो ये देखता है, अब वो हायर परचेज एग्रीमेंट में आई है या लीज एग्रीमेंट में आई है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली आम आदमी के लिए लीज रेंटल हो या हायर परचेज एग्रीमेंट हो कोई मायने नहीं रखता। और वैसे भी हायर परचेज एक्ट तो रिपील ही कर दिया था, लेकिन स्टिल आज भी ट्रेड जो है हायर परचेज को मानता है। तो अगर कोई सप्लायर उसको एज लीज रेंटल ट्रीट करते हुए अगर उस ट्रांजेक्शन को कंक्लूड कर रहा है तो उसे सर्विसेज मानते हुए पहला महीना से लेकर एंड ऑफ द मंथ जितने पीरियड के लिए लीज रेंटल है, हर महीने के लिए उसे सर्विसेज मानते हुए डिसाइड करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी एंड अकॉर्डिंगली बिल करना है। लेकिन लीज में मंथली बिल होगा, जैसे कि लाइसेंस या रेंटल में भी मंथली बिल होता है, ठीक है। और अगर वो हायर परचेज ट्रीट करता है सप्लायर, तब उस केस में उसे गुड्स ट्रीट करना है। और हायर परचेज में
पूरे हायर परचेज अमाउंट का, हमारे जनरेटर वाला जो केस हमारा बिलाई वाला चल रहा था उसमें 1,20,000 रुपए का बिल आज ही रेज कर देंगे 1 लाख की जगह, इंक्लूडिंग हायर परचेज इंटरेस्ट 20,000, 1 लाख प्लस 20,000 इंटरेस्ट, 1,20,000 का आज ही बिल रेज कर देंगे और उस पे 18%, उस पे जो भी गुड्स था, क्योंकि वो गुड्स है, गुड्स पे जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से रेट लगाकर आज बिल कर देंगे पूरा। और आज 10,000 12,000 रुपए दिए उसने और 10 महीने तक हर महीने 12,000 रुपए देता रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट मानी जाएगी। सर इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा? नहीं टैक्स लगेगा, रेट ऑफ जीएसटी का रहेगा सर, वही सेम जो गुड्स का, जो गुड्स का है या जो सर्विस का है। ओके। अब यहाँ पे एक टैक्स प्लानिंग आ गई कि सर्विसेज है तो जनरल रेट है 18%, ठीक है। अब मान लो कोई गुड्स हैं जिसका जनरल रेट 28% है या जिसका जनरल रेट 18 से कम है, यानी कि 12 या 5 है, उस केस में हमें एज ए सप्लायर हमें हायर परचेज पे जाना है या हमें लीज पे जाना है। तो अगर 28% वाली आइटम है उसको लीज पे जाएंगे तो 18% हो जाएगा, बीइंग सर्विस। दो बेनिफिट रहेंगे उसमें सर, क्योंकि बीइंग सर्विस और टैक्स डेफर हो जाएगा हर महीने, लीज रेंटल को डिवाइड करके हर महीने टैक्स की लायबिलिटी आज नहीं रहेगी, उसको डिफरेंट मंथ्स में हो जाएगी। तो क्या बेनिफिट हो गया? एक तो कस्टमर के लिए बेनिफिट हो गया, 10% की कॉस्ट बच गई, जिससे कि उसका मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि एंड यूजर की बात हम कर रहे हैं। कोई अगर बिजनेस वाला है तो वो तो इनपुट ले लेगा, लेकिन एंड यूजर के लिए 10% की कॉस्ट कम हो गई और सप्लायर के लिए क्या हो गया कि जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो हर महीने उसने पे करनी है, ना कि एडवांस में इकट्ठे। हायर परचेज में जाता है तो उसे 1,20,000 का पूरा ही बिल करना था और जो भी उसका रेट था 28% अगर था तो 28% की लायबिलिटी इसी महीने आ गई, जबकि पेमेंट तो आएगी उसे इंस्टॉलमेंट में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। लेकिन अब अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका नॉर्मल टैक्स रेट है 5% या 12%, तो उस केस में अगर वो लीज पे जाएगा तो 18% पे जाना पड़ेगा और एंड यूजर कहेगा नहीं ये मेरे को तो रेट ऑफ टैक्स 5% या 12% लगना चाहिए, आप 18% क्यों लगा रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा मार्केट में। इसका मतलब क्या है? और दूसरा क्या होगा, अगर वो हायर परचेज में जाता है कस्टमर की मानते हुए तो उसको पेमेंट 1,20,000 रुपए पे टैक्स आज ही देना पड़ेगा, जबकि इंस्टॉलमेंट में आएगी पेमेंट कस्टमर से, तो लेकिन टैक्स रेट कम हो जाएगा। तो ये एक टैक्स प्लानिंग भी है, ठीक है ना। मतलब सर्विस में 18% देन वो 5 या 28 जो भी है उस हिसाब से लगेगा। हाँ, अगर हायर परचेज एग्रीमेंट में जाते हैं तो गुड्स का रेट लगेगा, क्योंकि सारे लॉ के प्रोविजंस गुड्स को मानते हुए उस पे अप्लाई करने पड़ेंगे हायर परचेज में। और लीज या लाइसेंस के केस में सारे प्रोविजन ऑफ एक्ट सर्विसेज को मानते हुए अप्लाई होंगे। तो अगर वो लीज रेंटल पे लीज पे जाता है तो उसे सर्विसेज मानते हुए रेट ऑफ टैक्स जनरल रेट 18% ही है। और अगर वो गुड्स हायर परचेज पे जाता है तो जो एप्लीकेबल गुड्स का रेट है, अगर जनरेटर सेल कर रहा था हायर परचेज पे तो जनरेटर का जो भी रेट होता, 5 होता, 12 होता या 28 होता या इवन 18 भी होता, तो जो भी है वो लगाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से 5% है ना शायद टीवी फ्रिज पे, तो सब पे तकरीबन 18 कर दिए इन्होंने। 5 तो नहीं ज्यादा है सर, 18 या 28% है टीवी पे, 18 और 28 है। अच्छा, लग्जरी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है लग्जरी आइटम्स में ही काउंट होती है, तो 18 और 28 है सर। तो 14 इंच से बड़ा लोगे तो 28 है, कुछ ऐसे है। ठीक है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था अगर मान लो किसी में 5% होता तो वो एग्जांपल हमें बहुत बढ़िया सूट करता था भैया। और अब तो मोबाइल पे भी 18 कर दिया इन्होंने 12 से। किसको? मोबाइल पे 12 से 18 कर दिया ना। हाँ, क्लैरिफाई हो गया जी सर। अब जैसे बीना ने बोला मोबाइल पे अगर जैसे मान लो पुराना अगर केस लेते, मोबाइल पे 12% रेट था, तो उस समय अगर लीज पे जो अगर कोई मोबाइल लीज पे खरीदता है तो उसको टैक्स रेट 18 करना पड़ता सर्विस मानते हुए, और अगर हायर परचेज करता है तो 12% चलता।
अरे जो हम मोबाइल जो लेते हैं बाहर दुकानों से, ये जर्नली हम हायर परचेज पे ही लेते हैं ना, वैसे ये लीज पे तो नहीं देते कोई भी। पता नहीं, डिपेंड करता है ना। हायर परचेज एक्चुअली तो हायर परचेज एक्ट तो रिपील हो गया, लेकिन कस्टमर सप्लायर क्या ट्रीट कर रहा है उसको, हायर परचेज में एग्रीमेंट होता है या लीज हायर एग्रीमेंट? परचेज ही। अगर हायर परचेज एग्रीमेंट है तो हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट है तो लीज एग्रीमेंट। उसमें तो एक साइन होता नहीं, बस उसमें तो ये होता है कि अपना आईडी दिखा दो और अपना एक वो दिखा दो चेक, और अपने आप आपकी ईएमआई करती रहेगी उसके अंदर से। अब वो हमें तो पता लगता नहीं है। मैं वो तो पहले ही बताया कि एज ए कस्टमर हमें नहीं मतलब भी नहीं होता कि लीज है कि हायर परचेज, हमें क्या लेना देना, हम ध्यान भी नहीं देते। हम तो ये देते हैं क्या बेनिफिट हो रहा है हमें, हमारे पास आज पैसे नहीं है, ठीक है इतने पैसे देने पड़ेंगे, पैसे किस्त में चले जाएंगे। वो किस्तें हमें, हमारे हिसाब से वो किस्तें ही हैं, लीज रेंटल नहीं है, हमारे हायर परचेज नहीं है, हमें नहीं पता क्या है एज ए कस्टमर। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी आ गई मेरे हिसाब से थोड़ी सी। काफी चीजें क्लियर हो गई। जो फर्स्ट रीडिंग में क्लियर नहीं हो रही थी, सेकंड रीडिंग में क्लियर हुई। कब कब मतलब बेसिकली दैट इज ए पॉइंट ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि कब आपको हायर परचेज बनाना चाहिए और कब आपको वो बनाना चाहिए, और कब उसको लीजिंग। एग्जैक्टली। सर हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए कोई मेल तो नहीं आई ना? नहीं, क्योंकि अभी भी मतलब आ रही है शायद कुछ बैंकों की मेल। जाएगी भी ना। कंसेंट आ रही है या लेटर ऑफ एलोकेशन ऑफ ब्रांचेस? एलोकेशन ऑफ ब्रांचेस आ रही है ना, तो वो जिनको कंसेंट आ चुकी थी, अच्छा उनका लेटर आ रहा है। उनको लेटर आ रहा है। स्टेट बैंक ने दे दिया, ओके। बाकियों ने भी दिया नहीं है। सर ने मैसेज डाला तो था। मैंने मैसेज डाल तो दिया था। क्या? पढ़ा नहीं? थैंक यू वेरी मच। इस बार अच्छा लग रहा है कि हमें बैंक ऑडिट नहीं मिली, नहीं मिला। पहली बार लाइफ में ऐसा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है आपको? हमें तो सर उम्मीद थी कि अब की बार एक ऑडिट मिलेगी तो हम लोग समझी नहीं मैं अभी भी। नहीं अभी जाएंगे कहाँ कोरोना में। कोरोना में नहीं जाएंगे सर, जाएंगे तो बाद में। अभी तो जाना पड़ता, लोगों ने शुरू भी बाद कर में कहा दी, जाती। लोगों ने शुरू भी कर दी ऑलरेडी, और बाद में भी जाने में दिक्कत है। अच्छा। अभी बैंकों ने क्या किया, 3-3 ब्रांचेस किया, 2-2 ब्रांचेस दे दी। ओके। और एक और क्या किया,